hello everyone. So as we are learning your chapter number 2, your statics of fluid or स्थिर प्रवाहનો अभ्यास, in which we had learned some of the your theory or your statement, okay, and we had learned some of your definition, okay. Then after we had learned about your one of the derivation of the Pascal's law, in which we had learned about the statement of Pascal's law. Then after we had seen some of the definition related to that law. Okay, after now today we will learn about your new theory, which is your atmospheric pressure, absolute pressure and the gauge pressure. So today we will learn about this the relation between three of this pressure. So this is a simple graph that you had given in this. This graph is shows the relation between the absolute, gauge and vacuum pressure. So as you can see that there are 3 point A, point B and point C. So at this point C, this is called your local atmospheric pressure line. Local atmospheric pressure is means what, जो प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं on the surface of the earth, that we are facing the pressure is called the atmospheric pressure, which is your 1.01 Newton per meter square or 1.01 bar. Okay, so 1 bar is called your atmospheric pressure. Okay, then after vacuum pressure is what, the pressure below the atmospheric pressure is called the vacuum pressure. You know there is a vacuum pump is available in the market. Okay, so this is called the vacuum pressure, means what, the pressure is below the atmospheric pressure, means what, their temperature, that pressure must be below the 1.01 bar or 1.01 Newton per meter square. So 0.98, okay, 0.90, 0.80, whichever, but less than the 1.01 bar is called the your vacuum pressure. ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर इज व्हाट, जब हम गाड़ी में जो हवा भरवाते हैं, ओके, आप गए होंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी में हवा भरवाने के लिए, तो जो प्रेशर जो रहता है उसके पास प्रेशर गेज, जो प्रेशर वो मेजर करता है वो कौन सा होता है, आपका गेज प्रेशर होता है, मीन्स व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस योर गेज प्रेशर, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर. तो जो प्रेशर सपोज उसमें गाड़ी में प्रेशर रहता है आपका 1.4, ओके, या 1.6 बार, तो वो कौन सा रहेगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, तो अगर इसमें से हमको गेज प्रेशर फाइंड करना तो कैसे करेंगे, हमको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना आपका 1.01 बार है, और जो हमने गाड़ी में जो हवा हमने भरवाई है उसका प्रेशर कितना है आपका, सपोज 1.4 बार है या 1.6 बार है, तो क्या करेंगे हम 1.4 में से 1.01 बार माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गेज प्रेशर मिलेगा, क्योंकि 1.4 के आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, विच इज समेशन ऑफ योर atmospheric pressure plus gauge pressure. Okay, now we will learn about this all the terms. So first one is your atmospheric pressure. It is denoted by the P ATM. So ATM is your atmospheric and P is your pressure. So P ATM is your atmospheric pressure. So the atmospheric air exerts a normal pressure upon all the surface with which it is in the contact and it is known as the atmospheric pressure. जैसे कि मैंने जो बोला आपको, जो अर्थ सरफेस पे जो हम फील कर रहे हैं, जो प्रेशर हमारी बॉडी पे लग रहा है वो क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर वो बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द प्रेशर एल्टीट्यूड. ओके, प्रेशर एल्टीट्यूड मतलब क्या, जैसे कि जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे, बराबर, माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो वो क्या अर्थ सरफेस पे 8000 मीटर ऊपर है माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड मतलब क्या, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है अर्थ सरफेस पे. तो जैसे कि जैसे हम ऊपर जाएंगे माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे क्या है, जो अर्थ सरफेस पे कितना आपका 1.01 बार है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर घटता जाएगा, तो प्रेशर घटेगा तो हमको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ पड़ेगी. तो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ सरफेस से, तो वहाँ पे क्या हमको सांस लेने में तकलीफ पड़ती है. तो वो क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या घटता जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर घटेगा. ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन द अल्टीट्यूड, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द अल्टीट्यूड. ओके, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. एज इट इज मेजर बाय द बैरोमीटर, सो इट इज नोन एज द बैरोमेट्रिक प्रेशर. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज और 1.01325 बार और 760 mm ऑफ Hg. जैसे कि मैंने आपको बोला जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो कितना आता है आपका 1.01 बार, और बार का यूनिट क्या होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, और कितना है आपका 760 mm ऑफ Hg. जो पारा जो है उसकी हाइट कितनी जाएगी, ओके, तो उसको भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, mm ऑफ Hg हाइट. जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला था P = ρgh, तो अगर हम पुट करेंगे, ये क्या आपका mm ऑफ Hg है, तो इसको हम पुट करेंगे, रो क्या है, डेंसिटी कितनी है हमारी मर्क्यूरी की 13,600 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू क्या है 9.8 और एच की वैल्यू क्या आपकी दी हुई है 760 mm ऑफ Hg. इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो आपको प्रेशर अल्टीमेटली कितना मिलेगा 1.01 बार ही मिलेगा. तो आप फाइंड भी कर सकते हो P = ρgh पे से
फॉर्मूले पे आप सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे। रो की वैल्यू मैंने आपको बताई, जी की वैल्यू 9.81 है और एच की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है 760 एम ऑफ एच जी। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमको पी कितना मिलेगा 1.01 बार ही मिलेगा। ओके, तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन आफ्टर है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को डिनोट कैसे करेंगे, पी ए वी। ए वी आपका एब्सोल्यूट होगा, पी के आपका प्रेशर। तो योर एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर मेजर विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो। ओके, एब्सोल्यूट जीरो कॉल द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये आपका है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो रेफरेंस लाइन से जब हम मेजर करेंगे तो रेफरेंस लाइन आपकी ये वाली है, तो इस लाइन से जब हम मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हमको पॉइंट ए पे मेजर करना है तो ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट 1। सेम रेफरेंस लाइन से हम मेजर करेंगे पॉइंट सी पे, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सी पे है लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सी पर होगा। सेम बी पॉइंट पे क्या होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी। तो रेफरेंस लाइन से जिस पॉइंट पे हमको मेजर करना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका पॉइंट ए पे एब्सोल्यूट प्रेशर रेफरेंस लाइन से, सेम ये आपका बी पॉइंट पे है एब्सोल्यूट प्रेशर रेफरेंस लाइन से। ओके, दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ द एब्सोल्यूट प्रेशर और पी एब्सोल्यूट इज atmospheric pressure plus or minus gauge pressure. So P absolute is P ATM atmospheric pressure plus or minus P gauge pressure, where plus is your positive gauge pressure. Okay, and negative is your negative gauge pressure or called vacuum pressure. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो आपके कितने टू टाइप के गेज प्रेशर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, नेगेटिव हम कब बोलेंगे, तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो जब आपका गेज प्रेशर कहाँ से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है उसके बिलो होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर, और उसको क्या बोलेंगे दूसरा टर्म वैक्यूम प्रेशर। अगर आपका जो प्रेशर है वो किससे होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टू टाइप के गेज प्रेशर हैं, और नेगेटिव गेज प्रेशर का दूसरा नाम है आपका वैक्यूम प्रेशर। ओके, नाउ gauge pressure and vacuum pressure. So the pressure measured with the reference to the atmospheric pressure is called the gauge pressure. So that's जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेफरेंस हम क्या लेंगे यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। तो रेफरेंस आपका क्या होगा, ये सी जो पॉइंट है वो क्या होगा आपका रेफरेंस लाइन होगा। ओके, अगर इससे ऊपर हुआ तो आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर आएगा, इससे नीचे हुआ तो आपका नेगेटिव गेज प्रेशर आएगा, और नेगेटिव गेज प्रेशर को हम बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। ओके, so the pressure measured with the reference to the atmospheric pressure is called the gauge pressure. If the gauge pressure is above the atmospheric pressure is called the positive gauge pressure, that I have told you. If the negative pressure above the atmospheric pressure is called the negative gauge pressure or vacuum pressure. So the vacuum is your atmospheric pressure minus absolute pressure. So as you can see here, the atmospheric pressure is your this minus your atmospheric pressure. This is your atmospheric pressure minus your absolute pressure. This one is your, so atmospheric pressure minus absolute pressure is called your vacuum pressure. So at point C you can see here your, this is your PATM. Okay, P atmospheric pressure minus your P absolute pressure. This is your absolute pressure PAV. This is your PATM. So this minus this is your called vacuum pressure at point V. Okay, this I have explained you. So vacuum is equal to PATM minus atmospheric pressure minus absolute pressure, whereas your gauge pressure is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure. So your atmospheric pressure is your, you can see here from this diagram, your gauge pressure is positive gauge pressure, your absolute pressure, this one is your absolute pressure minus your atmospheric pressure. So P absolute minus P atmospheric is your called gauge pressure or positive gauge pressure. Okay, so from these two terms you can simply learn that positive gauge pressure, the difference between the positive gauge pressure or the negative gauge pressure or the vacuum pressure. So this is a basic difference between the positive and the negative gauge pressure. Now then after this, the relation of the positive negative gauge pressure absolute pressure, we will learn the new term about the pressure measuring device. In this term we will learn about the various pressure measuring device, their types, their working and their application. So now let's see first of all how they work. Okay, the working or the principle of the pressure measuring device. So there are two principles. First one is your balancing the column of the liquid by the sum or another column of the liquid. These types of device are called manometer. सेकेंड वन मतलब कि हमको यहाँ पे बैलेंस करना है कॉलम का विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड. ओके, तो दिस आप डिवाइस आपके होंगे मैनोमीटर. ओके, सेकेंड वन है आपका इन अदर टर्म्स of device which use the elastic movement, example spring, dead weight to balance the force exerted by the fluid. These types of device are called mechanical gauge. Okay, जैसे कि आपका प्रेशर गेज है, स्प्रिंग बैलेंस जो आपका आता है बराबर, जो आपका त्राजवा है वन टाइप्स ऑफ, वो भी क्या है आपका
वन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल गेज है। और जो स्प्रिंग जो मेजरमेंट डिवाइस जो आता है, ओके, जो हम नॉर्मली पेपर जो मेज़र करते हैं, ओके, इस टाइप का कुछ आपका जो मैकेनिकल डिवाइस जो आता है स्प्रिंग डिवाइस, तो वो क्या आपकी स्प्रिंग पे वर्क करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो वो क्या आपका यहाँ पे हम जो लोड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो स्प्रिंग जो लगी होती है वो क्या डिफ्लेक्शन होती है, तो उसकी हेल्प से हम क्या उसका वेट मेजर करते हैं। तो वेट कैसे मेजर करते हैं, वन टाइप से वो प्रेशर अप्लाई होता है, ओके, तो उस जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट से, तो उसकी हेल्प से हम वेट मेजर करते हैं। तो वो किसके रिलेटेड है, आपका प्रेशर से ही रिलेटेड है। ओके, सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल ऑन विच दिस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आर वर्क। So let's see the classification of the pressure measuring device. So that's here seen there are two pressure measuring device. One is called manometer, the second one is called mechanical gauge. So let's see the classification. तो मैनोमीटर में आपके आएंगे सिंपल मैनोमीटर, देन आफ्टर योर डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसकी भी टाइप में सिंपल मैनोमीटर के पीजियोमीटर, U2 मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देन आफ्टर डिफरेंशियल मैनोमीटर के टाइप्स टू पीजियोमीटर मैनोमीटर, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर, U2 डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड माइक्रो मैनोमीटर। ओके, सो ये अलग अलग टाइप्स हैं, इसके बारे में हम वन बाय वन लर्न करेंगे अलग से। ओके, देन आफ्टर आपके मैकेनिकल गेज हैं, वर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, वेलो प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। So these are the classification of the manometer and the mechanical gauge. Okay, classification of the pressure measuring device. So one by one we will learn about all these device. Okay, their application, their uses. Okay, so now let's start. First one is your manometer. So what is the manometer, how it works, what is the working principle? So manometer works on the principle on balancing the column of the liquid whose pressure is to be measured by the sum of the another column of the liquid. यहाँ पे क्या होगा, हम जो मैनोमीटर है तो उसको हम कैसे वर्क करेंगे, उससे हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूज़ क्यों करेंगे हम, तो प्रेशर मेजर करने के लिए। ओके, तो प्रेशर मेजर करना है हमको मैनोमीटर की हेल्प से, तो वर्क कैसे करेगा, तो सिंपल मैनोमीटर मेजर द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड वेयर एज डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स इन अ फ्लूइड। मैनोमीटर जनरली मेड ऑफ ग्लास ट्यूब। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक ग्लास ट्यूब होगी, तो उसमें क्या हम पानी फिल करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर जो कॉलम जो मेजर होगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 760 mm ऑफ Hg था, बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर से। तो उसमें क्या हम वाटर फिल करेंगे और जो वाटर का जो सरफेस है जो पाइप में जितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे और फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P इक्वल टू रो जी एच। तो विद द हेल्प ऑफ द हाइट or distance which is covered by the fluid in the glass tube which we will measure in the term of the mm, and that term we will apply in the formula above P equal to rho gh. Okay, with the help of that formula we will be measure the pressure. Okay, और यहाँ पे आपके दो प्रेशर थे, दो सिंपल आपके मैनोमीटर थे, एक सिंपल मैनोमीटर था, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर था। सो मैनोमीटर जो सिंपल था वो क्या किसी एक पॉइंट पे आपका प्रेशर मेजर करेगा, वेरेज जो डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है वो क्या करेगा, दो डिफरेंस पॉइंट है वहाँ का प्रेशर मेजर करेगा और उसकी हेल्प से हम प्रेशर मेजर करेंगे। मतलब क्या, जो प्रेशर जो डिफरेंस हो रहा है 2 पॉइंट पे उसको वो मेजर करेगा और इसका हम डिफरेंस लेंगे 2 पॉइंट के प्रेशर का, तो उसको हमको क्या मिलेगा, नेट प्रेशर डिफरेंस मिलेगा, तो उसकी हेल्प से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस which are used to measure the pressure. One your simple manometer, second one your differential manometer. Now let's see, your first one is your piezometer tube. So let's see how it works. So this is your basic diagram और figure of the piezometer tube. तो इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका जो ट्यूब है, बराबर, तो वहाँ पे क्या हमको हाइट मेजर करनी है। सपोज हमको इस पॉइंट पे हमको प्रेशर मेजर करना है, गेज प्रेशर, तो क्या करेंगे हम, जो हमने बॉर्डर फिल किया है, बराबर, जो उसका पाइप है एक तो एटमॉस्फेयर पे डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ओके, और दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आपका बॉर्डर फिल होगा, वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एच मेजर करना है, जहाँ तक जो बॉर्डर है वो बॉर्डर का लेवल जो पाइप में जाएगा उसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है, हाइट, इन द टर्म ऑफ mm. Okay, so this is the simplest form of manometer, which is glass tube whose one end is connected to the vessel or pipe containing the liquid and other end is open to the atmosphere. Height of the liquid is in the tube is proportional to the pressure at the gauge point. ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो इसका जो एक 1 पॉइंट है जो कहाँ पे कपल होगा, जहाँ पे हमको प्रेशर मेजर करना है वहाँ पे कनेक्ट होगा, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होगा, ओपन टू द एटमॉस्फेरिक होगा। ओके, और जो उसकी हाइट जो इंक्रीज होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपकी प्रेशर के। सो प्रेशर की जो प्रोपोर्शनल होगी हाइट, ओके, सो P प्रोपोर्शनल टू H, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ योर P इज इक्वल टू रो जी एस वी विल मेजर द प्रेशर एट दैट पॉइंट।
Okay, suppose if h is the height of the liquid column in the piezometer tube in meter of liquid, then ओके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो h क्या है आपकी हाइट है, जो लिक्विड आपका ऊपर तक गया है पीजोमीटर में, सपोज उसकी h क्या है हाइट है, नाउ हमने बोला जैसे कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा उसके हाइट के, सो p प्रोपोर्शनल टू h, सो p इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करेंगे रो जी, तो p का फॉर्मूला मिलेगा p इक्वल टू रो जी एच, यहाँ p क्या है आपका प्रेशर जो कि हमको मेजर करना है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, g आपका कांस्टेंट है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका वैल्यू है 9.81, h है आपका मीटर और mm ऑफ एच जी जो हम मेजर करेंगे, और रो है आपकी डेंसिटी विच इज kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हाइट है उसको कन्वर्ट करेंगे प्रेशर में। नाउ द लिमिटेशन ऑफ द piezometer tube, it is used to measure the moderate pressure only, it is not suitable for the large pressure in lighter liquid. Okay, to measure the vacuum special arrangement is required to be made. So this is the limitation of the sum of the piezometer tube. Okay, so next one is your U2 manometer. So this will be, we will see in the next lecture. So today we had learn about the relation between your absolute pressure, okay, atmospheric pressure and gauge pressure. Then after we had seen about the your different classification of the pressure measuring device, in which we had seen the two types of pressure measuring device. One is your manometer, second one is your mechanical gauge. Then after we had seen about your how the manometer is work. So we had seen the working principle of manometer. Then after we had seen one of the types of manometer which is your piezometer tube. So we had seen how the piezometer works. In the next lecture we will learn about the how the U2 manometer works and the various types of manometer that we had seen in this classification. So I hope you understand this video. Thanks for watching.